Assalamu alaikum. In today's video, I will translate the chapter The Red Letter Day, that is the part of the Unit 3 Memories that is included in Oxford Progressive English Grade 6. Hope after watching this video you will understand the chapter. I will make a video on the question answers of this chapter so you can easily learn the answers from that video. Let's start the lesson. Ved Mehta was born in Lahore 13 years before partition. तकसीम से तकरीबन 13 साल पहले वैद मेहता लाहौर में पैदा हुए. He lost his sight at the age of 3 following meningitis and was sent to the boarding school for blind children at the age of 4. गर्दन तोड़ बुखार की वजह से उन्होंने अपनी बीनाई खो दी थी और उन्हें 4 साल की उम्र में नाबीना बच्चों के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था. मेनिंजाइटिस का मतलब होता है गर्दन तोड़ बुखार और ब्लाइंड का मतलब होता है नाबीना. Here he describes school trip with their teacher Mr. Ras Mohan to experience the sea for the very first time at Juhu Beach. यहाँ वो अपने उस्ताद मिस्टर रास मोहन दास के साथ जूहू बीच पर पहली बार अपने स्कूल के तफरीही सफ़र में समंदर को महसूस करने का तजर्बा बयान करते हैं. Now let's start paragraph 1. One day there was a series of explosions at the front gate. At first I thought someone was setting off firecrackers, but then I realized that what I heard was a motor car engine idling and repeatedly backfiring. एक गर्म दिन सामने के गेट पर धमाकों का एक सिलसिला था. पहले तो मैंने सोचा कि कोई पटाखे चला रहा है, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जो कुछ मैंने सुना वो मोटर कार का इंजन था जो बार-बार जवाबी फायरिंग कर रहा था. We heard search engine sounds all the time, mixed with the clip-clop of horses, the clatter of handcrafts, and the clink and pong-pong of bicycle bells and car klaxons. But they were always the sounds of passing traffic. No vehicle, it seemed, ever stopped in front of the school. हमने हर वक्त इंजन की ऐसी आवाज़ें सुनी हैं जो घोड़ों के क्लिप क्लप और हैंडक्राफ्ट्स यानी रेडियो की हंगामा आराई और साइकिल की घंटियों और कारों के क्लैक्सन के साथ मिली जुली आवाज़ें थी. लेकिन वो हमेशा गुजरने वाली ट्रैफिक की आवाज़ें थी. ऐसा लगता था कि कभी कोई गाड़ी स्कूल के सामने आकर नहीं रुकी है. Mr. Ras Mohan wants us all at the front gate, Bhaskar cried, running into the boys' dormitory. There is a lorry. We are really going to the Juhu beach. मिस्टर रास मोहन हम सबको सामने वाले दरवाजे पर बुला रहे हैं. भास्कर चिल्लाता हुआ लड़कों के हॉस्टल में चला गया. एक लॉरी है. हम वाकई जूहू बीच जा रहे हैं. Paragraph 2. We had heard Mr. Ras Mohan mention the visit to Juhu Beach as a red letter day. We had all talked about going to the seaside without knowing exactly what it was. The lorry had no seats, so we boys sat on the floor. I wanted to run around, but Mr. Ras Mohan was addressing us from the front of the lorry.
हमने मिस्टर रास मोहन को जुहू बीच के दौरे का तस्करा करते हुए सुना, जो कि उसे रेड लेटर डे यानी खुशी का दिन कह रहे थे। हम सब ने समंदर किनारे जाने की बात की थी, ये जाने बगैर कि ये क्या है। लॉरी में सीटें नहीं थीं, इसलिए हम लड़के फर्श पर बैठ गए। मैं इधर उधर भागना चाहता था, लेकिन मिस्टर रास मोहन लॉरी के सामने हम सबसे मुखातिब थे, इसलिए मैं भाग नहीं सकता था। Boys and girls, this is our first annual holiday at Juhu Beach. I want you to stay in your place because the ride is bumpy. लड़कों और लड़कियों, जुहू बीच पर यह हमारी पहली सालाना छुट्टी है और मैं चाहता हूं कि आप अपनी जगहों पर रहें क्योंकि सवारी बहुत मुश्किल है। पैराग्राफ 3। At Juhu Beach, I heard a sound I'd never heard before, a gigantic roar, alternating with the sound of a huge amount of water rushing out. The sound was very different from the quiet canal in Lahore. गरज के साथ पानी की बड़ी मिकदार बाहर निकलने की आवाज़। जूहू बीच पर मैंने एक ऐसी आवाज़ सुनी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये आवाज़ लाहौर की खामोश नहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कैनाल का मतलब होता है नहर। I wanted to run towards the sound and touch it to feel what it was really like, but the sighted master herded us boys into the boys' shake. He gave us each a pair of bathing trunks and we got into them. मैं आवाज़ की तरफ भागना चाहता था और उसे छूना चाहता था, यह महसूस करने के लिए कि वाकई कैसी है। लेकिन साइट मास्टर ने हम लड़कों को लड़कों की तैराकी का एक जोड़ा दिया और इसकी झोंपड़ी में डाल दिया। उसने हमें हर एक को नहाने के लिए मतलब वो जो जोड़ा था तैराकी का वो दिया और हमने उन्हें पहन लिया। Now you can do what you like, the sighted master said, but don't go beyond the rope in the water. अब आप जो चाहे कर सकते हैं, साइट मास्टर ने कहा, लेकिन पानी में रस्सी से आगे मत जाना। ये साइट मास्टर ने उन्हें कहा था ताकि वो रस्सी से आगे न जाएं क्योंकि वो सब के सब ब्लाइंड थे। I hesitated for a moment, wondering if there were wired lanes and how, amid the roar and the rush, I would hear the sighted master ringing the bell on the other side of the rope. But the partially sighted boys started running towards the roar and the rush, calling back, Abdul, Rabban, Vedi, there is nothing in the way, you can run too. मैं एक लम्हे के लिए हिचकिचाता रहा, सोचता रहा कि क्या तारों वाली ये गलियां हैं और कैसे। गरज और रश के दरमियान मैंने देखा मास्टर को रस्सी के दूसरी तरफ से घंटी बजाते हुए सुना, लेकिन जुज़वी तौर पर नज़र आने वाले लड़कों ने धाड़े मारी और रश की तरफ भागना शुरू कर दिया और पुकारने लगे, अब्दुल, रुबैन, वैदी, रास्ते में कुछ भी नहीं है, आप भी दौड़ सकते हैं। Paragraph 4. I ran towards the roar and the rush. The air smelled of salt and coconut. There was hot, grainy, dry ground underfoot. It was so hot that I could scarcely bear to put my feet on it, so I had to run fast and couldn't stop to examine it. मैं धाड़ की तरफ भागा,
हवा में नमक और नारियल की बू आ रही थी। पाँव तले से गर्म दानेदार खुश्क ज़मीन पर थे। ये इतना ज़्यादा गर्म थी कि मैं उस पर पाँव रखने के लिए मुश्किल से बर्दाश्त कर सकता था। इसलिए मुझे तेज़ी से भागना पड़ा और इसका जायज़ा लेने के लिए मैं बिल्कुल भी रुक नहीं पाया। Suddenly, I was in the water, being carried out. It closed over my head. I forgot everything. I felt I'd never been so happy. A jolt opened my mouth. I was rapidly swallowing water that tasted of tears, buckets of them. अचानक मैं पानी में था। मुझे लजाया जा रहा था। इसने मेरे सर को ढक दिया, यानी पानी से ढक दिया था पानी के बहाव की वजह से। मैं सब कुछ भूल गया। मैंने महसूस किया मैं इतना खुश कभी भी नहीं था। एक झटके से मेरा मुंह खुल गया। मैं तेजी से पानी निकल रहा था, जैसे मैंने आंसुओं की बाल्टियों का मजा चख लिया हो। I was plunged back, choking again. The water closed over my head. The water retreated. I lay on the water, wondering if the sea could take me all the way to the Punjab. Then I came up against a rope as thick as the one we used for the tug of war, and I heard the sighted master calling to me, "That's far enough. Come back for you will drown." मैं दम घुटता हुआ वापस चला गया था। एक बार फिर पानी ने मेरे सर तक पहुंच गया। पानी पीछे हट गया। मैं पानी पर लेट गया। सोच रहा था क्या ये समंदर मुझे पंजाब तक ले जाएगा। फिर मैं रस्सी के मुखालिफ आया, जितनी मोटी रस्सी हमने रस्साकशी के लिए इस्तेमाल की थी, और मैंने साइट मास्टर को कहते हुए सुना, बस इतना ही काफी है, वापस आओ वरना डूब जाओगे। पैराग्राफ 5। We spent the day bathing in the water and running around the new ground. I couldn't get as we liked, and when we ran, we just had to keep the sound of the ocean to our left or over the way. It shifted around almost like the water. हमने दिन पानी में नहाते हुए और नए ग्राउंड के इर्द गिर्द भागते हुए गुजारा। मैं अपनी पसंद के मुताबिक हासिल ना कर सका। जब हम भागे तो हमें सिर्फ समंदर की आवाज़ को अपने बाएं तरफ या इसके इर्द गिर्द मुंतकिल होते हुए रास्ते पर रखना था, तकरीबन पानी की तरह। We could go into the water as often, right, depending on which way we were facing. The school compound and the racing track suddenly shrank in my mind like a woolen sack. Mami ji had knitted me, which became so small after it was washed that I could scarcely get my hand in it. हम पानी में अक्सर दाएं तरफ जा सकते थे। इस बात पर मुनहसिर था कि हम किस रास्ते का इंतखाब कर रहे थे। स्कूल का कंपाउंड और रेसिंग ट्रैक अचानक मेरे जहन में सुकड़ सा गया था, यानी छोटा हो गया, जैसे ऊनी जुराब जो कि मामी जी ने मुझे बुना हुआ दिया था, जो धोने के बाद इतना छोटा हो गया कि मैं उसमें हाथ नहीं डाल पाता था। यानी जुराब जो है ना, धुलने के बाद इतनी छोटी हो गई थी, सुकड़ गई थी, जिसकी वजह से वो हाथ नहीं डाल पाता था। होप यू लाइक माई एफर्ट। इफ यू लाइक माई वीडियो, you must subscribe my channel to for more such videos.